Students, today we are going to discuss chapter 20, that is locomotion and movement. And as we all know that movement is one most important feature of all living beings, either they are plants or they are animals. And there are lots of kinds of movement exhibited by the, or you can say shown by the animals and the plants. As you have heard about the streaming movement, I think so, that streaming movement means if suppose this is the plant cell and it is filled with the cytoplasm, as you all know, suppose. So these cytoplasm show that circular movement. Suppose this is the cytoplasm filled inside it, it shows the circular movement, it moves like this. So that is called streaming movement. It is also a kind of movement. Otherwise you have seen that different kind of movement, like movement of limbs, movement of our eyelids, movement of our tongues. All these movements are responsible for various kinds of action which are performed by the animals or the plants. And method of these locomotion is performed by animals. They differ varily with their habitats, because the animals or plants which are present in different habitats, of course they have different habitats, so there are certain requirement of that habitat and they behave accordingly. So that means their movement is based on their habitat and the demand of the situation. And also you have studied in the previous chapter that macrophage cells, macrophage, that macrophage cells and that leukocyte cells है ना, आपको याद है leukocyte cells means जो white cells थी, they also show the amoeboid movement. Amoeboid movement means एनी काइंड, दे कैन मूव लाइक दिस, दे कैन मूव लाइक दैट, है ना, ऐसे करके कहीं भी किधर भी वो मूव कर जाते हैं. दैट आर कॉल्ड अमीबॉयड मूवमेंट. तो वो अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. And you also saw various time that limb movement, jaw movement, tongue movement, and you have seen that various kinds of muscular movements. And because muscles have that property of contactability, or you can say muscles can contact easily, so they can be used effectively for the locomotion, है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्टैक्ट होने की, रिलैक्स होने की, तो उनको बहुत सारे मूवमेंट्स में यूज़ कर लेते हैं. एंड द ह्यूमन बींग्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, we have to perform certain kinds of function, and for that we need various kinds of movements or locomotion. and आपको पता है कि ये locomotion और जो movement जो भी होते हैं, they need कोऑर्डिनेशन, है ना. विदाउट कोऑर्डिनेशन को तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सपोज आपने फूड इनगल्फ किया, आपने फूड खाया, तो आपकी टंग के मसल्स को भी चलना है, चीक के मसल्स को भी चलना है, ईसोफेगस के मसल्स को भी चलना है, स्टमक के मसल्स को भी चलना है, और एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में इनको चलना है. ऐसा नहीं कि स्टमक कह दे भी मैं तो अभी काम नहीं करता और ईसोफेगस में आपने खाना जा रहा है आपका, तो ऐसे नहीं होता. तो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और यू कैन से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर मसल्स एंड न्यूरल सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि नर्व से कनेक्टेड होती है मसल्स. अगर आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, तो आपने सपोज देखा होगा कि दिस इज अ मसल एंड दिस मसल इज कनेक्टेड विद अ नर्व, बिकॉज विदाउट नर्व मसल्स अपने आप से कोई काम नहीं कर पाएंगी ना. उनको मैसेज मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सपोज हाथ में कील आपको चुभ गई, तो आपको ब्रेन बताएगा कि भाई आपको कील लग रही है, आप मसल हाथ को हटा लो वहाँ से, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड यू मूव योर हैंड फ्रॉम देयर. तो दैट मीन्स कि लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, मसल्स का भी, स्केलेटल का भी, बिकॉज मसल्स आर अटैच्ड विद योर स्केलेटन, ठीक है. और अगर आपको कुछ झुकना है, उठना है, कुछ भी करना है, तो आपका बोन मूवमेंट भी साथ में होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ये कॉम्बिनेशन है. किनका कॉम्बिनेशन है? न्यूरल मीन्स ब्रेन का, वो आपको बताएंगी. स्केलेटल, दैट मीन्स बोन का. एंड ऑब्वियसली मसल तो है ही है, MUSCLE मसल्स. तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. इन तीनों के बिना काम नहीं हो सकता, ये एक अकेले कोई मूवमेंट नहीं हो सकता इनके अंदर. तो ऑल थ्री आपस में मिलके और ये जो भी आपके मूवमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं. And now there are different kinds of muscle. We have also studied all these things, but I have just revised the topic muscle once again so that you can recall all the things. And like we have studied that कोई भी बॉडी का ऑर्गेनिजम्स हो तो वी हैव 3 एम्ब्रियोनिक लेयर. हमने पढ़ा ना, कोई भी पार्ट हमारी बॉडी का बनना होता है तो इट हैज़ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो हमारी मसल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ
mesoderm. That means you can say that these are mesodermal in origin. तो जो मसल्स हैं दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑल्सो लाइक एक्साइटेबिलिटी. दैट मीन्स अगर आप टच करेंगे मसल्स को तो एक्साइट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं. तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी दैट मीन्स एक्सटेंड होना, फैलना, सिकुड़ना, इलास्टिसिटी, ऑल दीज थिंग्स आर the properties of the muscles. Here I have written certain properties of the muscles, you can see it here. तो बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड नेचर एंड एज वेल एज यू कैन से देयर एक्शन, कैसे वो काम करती हैं, लोकेशन, तो उन तीनों के बेसिस पर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर, यू कैन डिवाइड द मसल्स इनटू 3 टाइप्स. एंड वो 3 टाइप्स भी आप पढ़ चुके हो. दैट इज़, वन इज़ कॉल्ड skeletal muscle, another is known as visceral muscle, and third one is known as cardiac muscle. So these 3 kinds of muscle we have already studied. And skeletal muscle is also known as striated muscle, क्योंकि striations होते हैं, आपने पढ़ा है. Visceral muscle is also known as smooth muscle or non-striated muscle, and cardiac muscle, you know that the muscles which are present into the heart. So now one by one we are just taking a quick look on this because we have studied it earlier, so not wasting much of the time. I am giving you the quick recap of the type of muscles. So suppose I am talking about the skeletal muscle. Why we call the skeletal muscles? Because these muscles are attached to the skeleton. तो skeleton के साथ ही attach होती हैं, and whenever you perform any movement तो ये move करते हैं. And striated क्यों कहते हैं? Because you have studied in the structure of that muscles, they have certain striations. Striations means ऐसे lines होती हैं इस तरह से dark और light करके, so they have certain striations. So that's why we call it striated muscle fibers. And what is the another important property is that these muscle work under the voluntary control of the nervous system, and primarily they involved in the locomotory action and change the body posture. तो ये आपके जो will है उस पर डिपेंड करता है. आपको चलना है, कहीं कुछ झुकी उठाना है, तो वो सारे काम जो है आप कर सकते हो. तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं, आप उन जो जैसा चाहो वैसा एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. दैट्स वाई कॉल देम कि लोकोमोशन में बेसिकली ये बहुत हेल्प करते हैं वेरियस टाइप्स के, एंड मूवमेंट्स में भी. देन कम टू द विसरल मीन्स द स्मूथ मसल फाइबर्स. एंड स्मूथ मसल फाइबर्स, यू ऑल्सो नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर. दिस इज लुक लाइक दैट. They are known as smooth muscles, and they are present into the inner wall of the hollow visceral organs. And what are the visceral organs which are present into your body, like alimentary canal, reproductive tract, ये सारे कहलाते हैं. तो suppose ये alimentary canal है आपकी, this is the alimentary canal. तो kind of muscles which are present over here, they are called as smooth muscles. And these smooth muscles are not work according to your will. आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता. बिकॉज सपोज आपने फूड खाया और आप चाहो कि आपके स्टमक के मसल वर्क ना करें, फूड को डाइजेस्ट ना करें, तो इट कांट बी पॉसिबल. आपने अगर एक रोटी खाई है तो आफ्टर 2 or 3 आवर्स वो डाइजेस्ट हो जाएगी, because your stomach muscle or you can say gastric muscles are working without your will. आप चाहो या नहीं चाहो वो काम करेंगे. In the same way movement of gamete is also is not depend upon your will. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सपोज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या मूवमेंट ऑफ गैमीट है इन द जेनाइटल ट्रैक्ट, ये सब हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते, तो ये अगेंस्ट हमारी विश होते हैं. और नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स आप सब जानते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट इन टू द heart. And what is the special thing about the cardiac muscles? That they show the branching pattern. If you remember or recall the structure of the cardiac muscle, you saw that you have seen that they are looking like that. ये इनके अंदर इस तरह से होते हैं. तो ये जो है ये क्या कहलाते थे? इंटरकलेटेड डिस्क कहते थे इनको हम. तो appearance wise they are striated, they are involuntary of course, and nervous system does not control these kinds of muscles. इनको nervous system control directly नहीं करता है. एंड नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल. तो ये अभी थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल. एंड वी हैव द डायग्राम ओवर हियर. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल. इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, सो यू हैव टू स्टडी इट केयरफुली नाउ. तो अब इसमें मैं स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ. दिस इज द कंप्लीट, ये मसल है, ये जो पूरा आउटलाइन दिखाया है ये एक मसल के बारे में दिखा रहे हैं. एंड देयर आर अदर कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन साइड इट. तो आपको ये समझ के पढ़ना है कि एक मसल के अंदर और क्या क्या होता है.
तो आपको पता है कि स्केलेटल मसल इज इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड फैसिका. इट इज रिटन हियर फैसिका. ये जो सर्कुलर हैं दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज फैसिका. तो ये फैसिकल्स आप कह सकते हो. तो फैसिकल्स कहलाते हैं और मसल बंडल्स कहलाते हैं. ये पूरे बंडल्स के हैं. जैसे मैच बॉक्स में तीलियां होती हैं ना, उनको आप किसी बटर पेपर से कवर कर लो, लाइक दैट ये हो जाते हैं बहुत सारे. तो ये अरेंज हैं इस तरीके से. एंड दीज फैसिकल हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिका. तो जो फैसिकल्स हैं, सपोज जैसे मैंने आपको बताया मैच बॉक्स है ना, माचिस आप जानते हैं मैच बॉक्स में ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, तीलियां होती हैं बहुत सारी, और इनके ऊपर सपोज आप एक बटर पेपर से पूरा इसको रैप कर दो, इसको सारे को. तो जो ये बटर पेपर से आपने जो मैच स्टिक्स की तीलियों को रैप कर दिया, दैट इज कॉल्ड फैसिका. एंड वो बटर पेपर क्या है, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है. और जो अंदर तीलियां हैं उसकी मैच बॉक्स की मैच स्टिक्स हैं, वो क्या हैं, वो कहलाएंगे आपके फैसिकल्स. अब क्लियर हुआ आपको. तो दीज आर द फैसिकल्स एंड कवर्ड बाय द फैसिका. फैसिका इज नथिंग बट अ कवरिंग, जो कवर करके रखती है, इनको इकट्ठा रखती है. एंड ईच मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको छोटे छोटे ये रेड कलर के दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर ऐसे राउंडेड, दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये एक स्केलेटल मसल का डायग्राम है. देन दे आर द फैसिकल्स, देन दे आर फैसिका कवर्ड इट, एंड देन दे आर मेड अप ऑफ दीज स्मॉल मसल फाइबर्स. जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिए थोड़े से यहाँ पे दिखाए हुए, बाहर निकाल के इन्होंने दिखाए. तो ईच मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स. तो बहुत सारे पतले पतले से जो ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज मसल फाइबर. इट इज रिटन हियर. तो मसल फाइबर्स हैं. एंड नाउ सपोज आपने एक मसल फाइबर को अलग कर लिया, ये एक मैंने मसल फाइबर को अलग कर लिया. तो जस्ट लाइक अ सेल, मसल्स फाइबर ऑल्सो हैव द साइटोप्लाज्म फिल्ड इन इट. इसके अंदर क्या फिल्ड होगा, साइटोप्लाज्म फिल्ड होगा. तो दिस इज सपोज कर लो साइटोप्लाज्म है. एंड इन दिस केस वी कॉल इट सार्कोप्लाज्म, नॉट साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म. इसको हम क्या बुलाएंगे, सार्कोप्लाज्म. मसल से जो भी चीज़ एसोसिएटेड होती है उसको हम मायो या सार्को वर्ड बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. एंड दिस मेम्ब्रेन which is present in outer side, this is also called as sarcolemma, not plasma lemma. We called it sarcolemma क्योंकि मसल्स में है, अदरवाइज इसको आप प्लाज्मा लेमा बोल सकते थे. तो मसल फाइबर के अंदर जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म. एंड जो ये मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा. एंड मसल फाइबर हैज मैनी न्यूक्लियस. अब अगर मैनी न्यूक्लियस हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एनिमल किंगडम में. वी कॉल इट सिंसिशियम. इफ यू फॉरगेट इट, गो टू द नोट्स एंड लर्न इट. TIUM, सिंसिशियम. तो सिंसिशियम हो गया, दैट मीन्स सार्कोप्लाज्म में देयर आर मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ओवर हेयर, एंड दिस कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ मेनी न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म, इज नोन एज सिंसिशियम. एंड ऑल्सो प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक इन द सेल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं, सेल्स में, आपको पता है. लेकिन यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मसल फाइबर. सपोज यहाँ पर मैं कौन सा कलर ले लूँ, व्हाइट कलर ले लेते हैं. सपोज यहाँ पर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, दे आर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहेंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन टू द मसल फाइबर. है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, but because it is present into the muscle fiber, we call it sarcoplasmic reticulum. And they are very important because they produce they store calcium ions. इनमें calcium ion store होते हैं. And without calcium ion our muscles cannot contract. तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर कैल्शियम प्रॉपर ना हो, तो हमारी मसल्स जो हैं ये प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी. तो कुछ भी हो तो उनके अंदर, जैसे हम नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो फिर वो कभी हाथ में कपकपी आ रही होगी या इतनी ताकत आपको नहीं लग रही होगी कि इन चीज़ों को मैं पकड़ लूँ या कुछ कर लूँ, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड इन मसल फाइबर लेयर नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड मायोफाइब्रस. ये तो मैंने एक बना दिया था यहाँ पर आपको, ये कि ये तो जी एक मसल फाइबर हो गया, ठीक है. लेकिन ये मसल फाइबर के अंदर भी बहुत सारे पतले पतले इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट आर कॉल्ड मायोफिलामेंट, है ना. मायो मैंने बताया जो चीज़ मसल से रिलेटेड है, मायो बोलते हैं. तो दे आर कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं. एंड सपोज आई रिमूव द इंक एंड ड्रॉ इट अगेन. सपोज आई ड्रॉ, दिस इज द मायोफाइब्रिल. आप इसको समझ लो कि ये मायोफाइब्रिल है. एंड मायोफाइब्रिल हैज़ ऑल्सो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं. अगर आप ब्लू वाले को डार्क कंसिडर कर लो और येलो वाले को हम लाइट कंसिडर कर लें, तो दिस इज़ द लाइट बैंड. दीज आर द लाइट बैंड. और
आप रेड वाले को ले लो, डार्क ले लो, तो दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डार्क एंड लाइट ऑल्टरनेट बैंड एंड दिस स्ट्रैटेड अपीयरेंस, स्ट्रैटेड मीन्स जो ये पट्टियों जैसी अपीयरेंस है, इट इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, आपको ध्यान से पढ़ना है। दैट इज़ वन प्रोटीन इज नोन एज एक्टिन एंड अदर प्रोटीन इज नोन एज myosin. These two proteins due to which this appearance it looks like that, ये पट्टियों जैसा इसीलिए दिखता है क्योंकि कहीं पर एक्टिन है प्रोटीन एंड कहीं पर मायोसिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन इज अ लाइट बैंड, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिन प्रोटीन तो दिस इज एक्टिन, ये येलो कलर मैंने लाइट के लिए लिया है तो दिस इज एक्टिन प्रोटीन, और अगर रेड वाला मैं डार्क बैंड के लिए आपको शो कर रही हूँ तो दे आर कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन। तो डार्क वन इज नोन एज मायोसिन एंड लाइट बैंड इज नोन एज द एक्टिन। ऑल्सो लाइट बैंड को हम क्या कह सकते हैं, आई बैंड, आई बैंड और एनाइसोट्रॉपिक बैंड। अगेन आई एम गोइंग टू राइट यू, suppose here I am going to write this is light band and actin प्रोटीन, क्योंकि इनके अंदर होता है लाइट बैंड्स के अंदर। आप इनको कह सकते हैं आई बैंड और आप कह सकते हो इसको आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। in the next just I have to remove it then and we use another color so that we can show it properly. This is dark band and myosin. Myosin is a kind of protein I told you, and you also call as A band or N isotropic band. Okay, now clear to you? Dark light band or actin, dark band or myosin. Light band that means actin is known as I band or isotropic, I for isotropic उसी से बन गया, A से anisotropic band or myosin. Now remember one thing also, that these bands, that means I am talking about the actin band. Actin band is thin and another is the myosin. Myosin is thick. ठीक है, ओके, आई जस्ट आफ्टर सम टाइम्स आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो, बट अभी के लिए आप याद रखेंगे कि एक्टिन इज थिन एंड मायोसिन इज थिक बैंड, एंड इन द सेंटर ऑफ दिस बैंड्स, इफ आई शो यू द डायग्राम ऑल्सो, with the help of diagram you can understand, this is the diagram of the various kinds of muscle fiber which I am talking about, that actin fiber, myosin fiber, they are also given here in this diagram also. तो वहाँ भी दिया हुआ है, जो सभी आपको easy लगे उससे आप समझ सकते हैं इसको. This diagram is given your NCERT book, that's why I am just clicking this picture. So in the center of I band, suppose ये I band है, तो आई बैंड के सेंटर में यहाँ पर एक इलास्टिक फाइबर एक होता है, इलास्टिक फाइबर, एंड इट इज़ कॉल्ड एज जेड लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन. ये हो गई जेड लाइन आपकी. एंड एम लाइन जो है वो भी बाइंड करती है फिलामेंट्स को ए बैंड के एक साथ. तो ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज ऑल्टरनेटली, एक के बाद एक अरेंज होते हैं, एंड द पोर्शन ऑफ टू मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन. जेड लाइन है, सपोज ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, इनके बीच का ये जो हिस्सा है मायोफाइब्रिल्स का, क्योंकि ये लाइंस कहाँ पर हैं, ये सारी मसल्स पर है ना, ये पॉइंट्स मसल्स पर हैं, एम जेड आई जो भी हम बोल रहे हैं, तो इनके बीच का ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स, और यही फंक्शनल यूनिट होता है, बिकॉज ओनली दिस विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. ये वाला हिस्सा ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, एंड दैट्स व्हाई कॉल्ड एट सार्कोमियर. इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स द पोर्शन of the myofibrils between two successive z lines, this z line और z line के बीच का ये जो हिस्सा है that is called sarcomere, and it helps into the contraction and relaxation. Again I remove the ink and try to show you. Now see the diagram. Here you can see that this is the z line, ये black color का आपको z line दिख रहा है, and these are the ये वाला ऊपर ये जो दिख रहे हैं, और एक ये सेंटर में है, तो these are the actin filaments, एंड ये जो सेंटर में पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट इज लिटिल बिट थिकर, है ना. मैंने अभी आपको बताया था कि मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट्स आर द थिन फिलामेंट. तो उनके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्टिन फिलामेंट्स कौन से वाले हैं, ये वाले एक्टिन फिलामेंट हो गए, और ये जो सेंटर में है ये वाले मायोसिन फिलामेंट हो गए.
यहाँ पर, एंड ये बीच की जो गैप है दोनों के बीच के, यानी कि जो एक्टिन फाइबर्स के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एच जोन. दे हैव रिटन इट हेयर एंड यू कैन इजीली सी दैट ये जो मायोसिन है इसको ओवरलैप किया हुआ है. देखो थोड़ा सा मसल ये है, थोड़ा सा ये इधर है, बीच में गैप है, तो थोड़ा सा ओवरलैप किया. ओवरलैप मीन्स ये इसको कवर कर लिया, इतने हिस्से को इसने कवर कर लिया ना, एक्टिन और मायोसिन ने आपस में दोनों कंबाइन हो गए. तो यू कैन सी इट इजीली विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे, ठीक है, इस समय ये जो आपको कंडीशन दिखाई जा रही है, ये आपको कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन दिखाई जा रही है. जब ये रिलैक्स होंगे तो ये अलग तरीके से ही आपको दिखाई पड़ेंगे. तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जो है, तो ये ओवरलैप करके रखते हैं हमेशा एक्टिन फिलामेंट थोड़ा सा मायोसिन फिलामेंट को. नाउ अगेन आई रिमूव द इंक सो दैट यू कैन अगेन सी दैट विच इज़ द ए बैंड. दिस इज ए बैंड. ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स एक्टिन फिलामेंट का कवरिंग द एच जोन, ये पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ए बैंड. एंड व्हाट इज द सार्कोमियर, मैंने बताया था दो जेड लाइन के बीच में, दैट मीन्स ये पूरा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर. तो ये पूरा ही हो गया ना, ये पूरा सार्कोमियर हो गया ये. एंड दिस इज द फंक्शनल यूनिट, मीन्स अगर काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, तो ये कौन करेगा, यही सार्कोमियर करता है. तो दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स जो हमने इनके बारे में बात कर ली कि किस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं. तो एज ऑफ एक्टिन फिलामेंट, दैट इज, इफ आई अगेन रिमूव द इंक, this is just take the color. This is the actin filament, and these actin filament, that means edges of these actin filament on either side, that both of the side, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दे ओवरलैप, है ना, ये पार्शली पूरा तो नहीं किया. तो द एजेस ऑफ द एक्टिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट्स पार्शली ओवरलैप फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट. दैट मीन्स ये वाला मायोसिन फाइबर्स को मैं बोल रही हूँ थिक फिलामेंट, ये इनको पार्शली ओवरलैप करता है, दैट मीन्स कवर करके रखता है फ्री एंड्स पे. एंड लिविंग द सेंटर पोर्शन, ये वाला पोर्शन फ्री छोड़ देता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं एच जोन. तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मसल फाइबर ऑल्सो. और ये स्केलेटल मसल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो दीज डायग्राम्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो. ये दो तरह के डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द myosin fiber, actin fiber, various kinds of. And in next chapter we will study certain other things. Till then you revise the chapter or revise the, you can say, topic. We will meet into the next lecture.